Hello students, today we are going to do question and answers for chapter number 10. Walls tell stories. First one, take the correct answer. First one, where is Golconda Fort located? Golconda Fort कहाँ है? Options are A. Hyderabad, B. Delhi, C. Kolkata and D. Sikkim. So, Golconda Fort is located in Hyderabad. Then, second one, which feature of the fort did not act as protection? इनमें से क्या फोर्ट के लिए प्रोटेक्शन का काम नहीं करता? Options are A. Bastions, B. Main gates, C. Iron spokes and D. King's throne. So King's throne did not act as protection. Third one, which of the following was used by Sultan as gun? सुल्तान के द्वारा क्या चीज़ इसमें से गन की तरह यूज़ की गई थी? Options are A. Sword, B. Cannon, C. Spear and D. Stone ball. So cannon. Cannon is the right answer. Fourth one. Why could not Aurangzeb enter the Golconda fort? Options are A. Iron pillar, B. Bastions, C. High walls and D. High gates. So औरंगजेब गोलकोंडा फोर्ट क्यों एंटर नहीं कर पाया था? बिकॉज ऑफ बेस्टियंस. फिफ्थ वन, इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट, विच डायरेक्शन इज ऑन योर लेफ्ट? अगर आप ईस्ट में फेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी? सो इट विल बी नॉर्थ डायरेक्शन. ओके. Then sixth one, a mixture of copper and tin is called. Options are A. Brass, B. Bronze, C. Copper and D. Both A and B. So the answer will be bronze. Seventh one, the Golconda Fort was built in mud in dash. कौन से टाइम पे गोलकोंडा फोर्ट मड का बना हुआ था? Options are A. 1200, B. 1518, C. 1687 and D. After 1687. So 1200 is the right answer. 18th one, गोलकोंडा फोर्ट्स आउटर वॉल हैज़ डैश बेस्टियंस. गोलकोंडा फोर्ट के बाहरी दीवार पे कितने बेस्टियंस है? ऑप्शंस आर 85, 87, 100 एंड डी नन. सो 87 इज द करेक्ट आंसर. नाइन्थ वन, गोलकोंडा फोर्ट हैज़ डैश इनसाइड द फोर्ट. गोलकोंडा के अंदर क्या चीज़ें हैं? ऑप्शंस आर गार्डन्स, बी फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी पैलेसेस एंड डी ऑल ऑफ दिस. सो गोलकोंडा फोर्ट के अंदर ये सारी ही चीज़ें हैं, gardens, fields and factories and palaces. So all of this is the right answer. 10th one, what kinds of tools would have been used for fine carving on the walls of Golconda Fort? गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर बारीकी से नक्काशी करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ की गई थी? ऑप्शंस आर ए हैमर, बी चीजल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी. सेकंड वन, चूज द करेक्ट state whether the statement is true or false. First one, big cannons were used on the enemies during a war. So yes, this statement is true. Cannons use किए जाते थे दुश्मनों के ऊपर. Second one, bastions are made inside the fort. No, bastions were made on the outer wall. Then third one, the long deep pits were made along the wall as a protection from enemies. सो यस, गहरे गड्ढे खोदे जाते थे वॉल के साइड में ताकि वो भी प्रोटेक्शन दे सके एनिमीज से. फोर्थ वन, गोलकोंडा फोर्ट वॉज मेड बाय कुतुब शाही सुल्तान सिंस 1687. सो नो, दिस स्टेटमेंट इज false. They have started expanding Golconda Fort in 1580. Then fifth one, burj or bastions are a part of wall which comes out in a round shape and higher than the fort wall. So yes, this statement is true. ये एक राउंड शेप में दीवार होती है जो फोर्ट की बाकी की दीवार से ऊंची होती है. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सिक्स्थ वन, एवरी मैप शुड हैव अ स्केल एंड अ की. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेवंथ वन, द फोर्ट हैज़ बेस्टियंस फॉर इज सिक्योरिटी. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बेस्टियन सिक्योरिटी के लिए होते हैं. एट्थ वन, द फाउंटेन ऑन द रूफ ऑफ किंग सुल्तान्स पैलेस in Golconda Fort ran with the help of electricity. So no, this statement is false. Ninth one, the museum in Hyderabad displayed pots, jewelry, swords, etc. for sale. So no, this statement is false. वो sale के लिए नहीं थे, they were just displayed. And 10th one, mehrab means ark. So yes, this statement is true. For question and answers, answer in one line. So why was a deep ditch dug along the walls of fort? Answer is to prevent enemy's army from entering the fort. दुश्मनों की सेना को फोर्ट में एंटर होने से बचाने के लिए वॉल के फोर्ट के अलोंग गहरे खड्डे खोदे जाते थे.
वाई वर बिग होल्स मेड इन बेस्टियंस, सो बड़े बड़े होल्स क्यों बनाए जाते थे बेस्टियंस में? टू इंक्रीज द व्यूइंग एरिया, द सोल्जर्स वुड लुक थ्रू दिस होल्स एंड कीप अ बेटर विजिलेंस, सो वो अच्छे से होल में से देख के निगरानी रख सके। थर्ड वन, what arrangements would have been made in the building for air and light? एयर एंड लाइट के लिए कैसे अरेंजमेंट्स थे? लार्ज डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स वुड हैव बीन मेड टू अलाउ एयर एंड लाइट एंटर द बिल्डिंग। तो एयर और लाइट की आवाजाही के लिए बड़े बड़े दरवाजे, विंडोज और वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे। फोर्थ वन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम थिंग्स केप्ट इन म्यूजियम? चीज़ें जो म्यूजियम में रखी जाती हैं उनसे हम क्या सीखते हैं? The things kept in museum help us to know about the lifestyle, culture and tradition of people of a particular time. एक समय के लोगों का लाइफस्टाइल, कल्चर और ट्रेडिशन हमें पता चलता है म्यूजियम में रखी हुई चीज़ों को देख के। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द गोलकोंडा फोर्ट? गोलकोंडा फोर्ट के ऊपर अटैक करना क्यों मुश्किल था? गोलकोंडा फोर्ट इज सराउंडेड बाय थिक हाई स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच हैज़ 87 बेस्टियंस। उसकी दीवार बहुत ही मोटी थी, ऊंची थी और स्ट्रॉन्ग थी, जिसके ऊपर 87 बेस्टियंस बने थे। देर आर ह्यूज गेट्स विथ शार्प आयरन स्पोक्स ऑन इट, और उनके बड़े बड़े दरवाजे के ऊपर आयरन के शार्प स्पोक्स भी लगे हुए थे। देर इज़ अ डीप डीच डग अलॉन्ग द वॉल ऑफ द फोर्ट, और उसके साइड में ही लंबी सा गड्ढा भी खोदा गया था, जिसके कारण फोर्ट में एंटर करना मुश्किल था। देन सेकेंड वन, व्हाट अरेंजमेंट्स वर डन फॉर वाटर इन द फोर्ट? फोर्ट में वाटर अरेंजमेंट्स के लिए क्या किया गया था? द फोर्ट हैज़ क्ले पाइप इन इट्स वॉल विच टेक वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फोर्ट में मिट्टी के पाइप्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाते थे। द मूवमेंट ऑफ बुलक रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ अनदर व्हील विच लिफ्ट्स वाटर अप फ्रॉम द ग्राउंड। सो वेल में से पानी निकालने के लिए बैलों का भी यूज़ किया जाता था। देन थर्ड वन, व्हाई इज़ अ स्मॉल गेट मेड इन अ ह्यूज गेट? तो बड़े से गेट में छोटा गेट क्यों बनाया गया था? द बिग गेट इज़ ह्यूज एंड हैवी एंड इज़ ओपन ओकेजनली एज पर द रिक्वायरमेंट। तो बड़ा गेट है वो बहुत ही हैवी होता था, ह्यूज होता था, जो कभी कभार ही ओपन होता था, जबकि स्मॉल गेट इज़ मेड विद इन द बिग बेड टू हैव ईजी फ्लो ऑफ पीपल अक्रॉस इट। तो ताकि लोग आराम से आ जा सके, इसलिए छोटा गेट यूज़ किया जाता था। फोर्थ वन, व्हाई शुड वी प्रिजर्व अवर हेरिटेज? हमें हमारी विरासतें क्यों प्रिजर्व करके रखनी चाहिए? हेरिटेज इज़ बिगेस्ट गिफ्ट गिवन टू अस बाय आवर कंट्री। हेरिटेज किसी भी कंट्री का एक बहुत बड़ा तोहफा होता है वहाँ के लोगों के लिए। इट रिफ्लेक्ट्स अवर वैल्यूज़, बिलीव्स, ये हमारे मूल्यों को दर्शाता है, हमारे सिद्धांतों को दर्शाता है, हमारी विश्वास, हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। देयर बाय डिफाइनिंग पीपल्स आइडेंटिटी। तो इसी तरह उस देश के लोगों की आइडेंटिटी बनती है, पता चलता है कि उस देश के लोग किस तरीके के हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ इफ़ वी लूज इट वी कैन नॉट रीगेन इट अगेन, सो वी मस्ट प्रिजर्व आवर हेरिटेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम लोग उसे खो देते तो हम लोग इसे वापस नहीं पा सकते, इसलिए हमें हमारी विरासतों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिफ्थ वन, व्हाट शुड बी डन टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज? तो क्या करना चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए? सो एज अ स्टूडेंट वी शुड फॉलो स्टेप्स विच कैन हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। फर्स्ट वन, प्रिवेंट अवर सेल्व्स एंड अदर्स फ्रॉम फिगरिंग और स्क्रिपलिंग ऑन द वॉल्स। तो वॉल्स को बिगाड़ना या उनके साथ कुछ छेड़छाड़ी करना या उसके ऊपर कुछ लिख देना से हमें भी बचना चाहिए और हमें किसी और को भी करने नहीं देना चाहिए। पार्टिसिपेटिंग इन द क्लीनलीनेस ड्राइव, जो भी वहाँ पे कुछ कूड़ा कचरा हम लोग ध्यान रखें कि हम कुछ फैलाए नहीं कूड़ा कचरा वहाँ पे, और अगर कोई फैला रहा तो उसे भी रोकना चाहिए। देन बीइंग अ पार्ट ऑफ अडॉप्ट अ हेरिटेज ड्राइव, तो हम लोग एक अडॉप्ट अ हेरिटेज ड्राइव जो है उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। Then sixth one, write some features which shows the marvelous engineering of गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा फोर्ट की इंजीनियरिंग जो है वो मार्वलस क्यों कही जाती है? सो वी कैन सी
बिल्डिंग्स विथ 2 floors, 2 floors की बिल्डिंग्स थी वो. देन दे हैव फाउंटेन ऑन द टेरेस कनेक्टेड बाय क्ले पाइप्स विद बिग टैंक्स. तो क्ले पाइप से फाउंटेन्स कनेक्टेड थे, उसमें बड़े बड़े टैंक्स भी कनेक्टेड थे. द वॉल्स हैव ब्यूटीफुल कार्विंग, वॉल्स के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी. फर्दर द इकोसिस्टम यूज टू वॉर्न एवरीवन in the fort in case of emergency and danger shows the marvelous engineering. फिर जो इकोसिस्टम जो यूज़ किया गया था, जो मतलब जो फतेह दरवाजे पे अगर कोई कुछ कहता था तो वो राजा के पैलेस में सुनाई देता था. तो ये जो इकोसिस्टम था चेतावनी देने के लिए मुसीबत की घड़ी में, वो बहुत ही इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आवर वर्कशीट इज ओवर. आई होप you must have understood this. Thank you and have a nice day.